Hello student, this is the second parts of the video lectures. Last topic I have covered many things like operating systems. You can see here the first topic is what introductions of operating system. The second is how to work of operating systems, in that bootings, what is the process of booting. Then after we have covered kernels in operating system, as already I suggested that the kernel is the central core of the operating systems, right? Then after I have covered the file systems. You can also show that the file is important terms for any computers. If you are going to do any works on a computer, you have to need a file, right? So you can store the file in any particular place like disk or folders, right? Then after I have covered the types of operating systems, there are five terms along with two next. It means there are seven terms. In that, the first term single user and single task operating system. The second one is multi-user operating system. The third one is multi-processing operating systems. And the next time sharing operating system, real time operating system, and last two is what? Distributed operating system, interactive operating system. Those seven terms I have covered in last sessions. If you have any problems, then go and check properly. And the today's sessions I am going to cover the functions of an operating system. It is also an important parts of this chapters. You have to revise it properly. I know you are not seeing properly videos right now, but you know na, now in a few days half yearly session will going to starts. Then you have to regularly revisions all the terms which I was studying in last sessions, right? Then let's summarize the today's sessions. The topic is what? Functions of an operating systems. Here, look here, the first term is what? Input output operations. What is input and output operations? As the name suggested here, you can check here. Input means input from keyboards, input from mouse, and output means output from any output devices like printers, monitors, right? So in that terms, the operating system is responsible for handling various types of inputs. Look here, this one, yes, and various types of outputs in the appropriate manner. For instance, in the input is coming from mouse, it requires different types of handling as compared to input coming from keyboard. Similarly, if an output is targeted for printer, it requires different types of handling as compared to output targeted for मॉनिटर, राइट? तो देखिए इस टर्म्स में जो कहा गया है, ये सारा जो प्रोसेस है वो हैंडलिंग द टारगेटेड है, मीन्स हैंडलिंग द प्रोसेस है कि हमारा जो इनपुट है वो कैसे हैंडल किया जा रहा है, आउटपुट कैसे हैंडल किया जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे बताया गया इनपुट प्रोसेस, जाहिर सी बात है हमारे इनपुट डिवाइसेस के थ्रू होंगे, आउटपुट प्रोसेस आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू होंगे। तो यही चीज़ बोला गया है कि आउटपुट टारगेटेड फॉर द प्रिंटर्स, इनपुट टारगेटेड फॉर द इनपुट डिवाइसेस, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे क्या बोला रहा है? इट रिक्वायर्स द डिफरेंट टाइप हैंडलिंग एज कम्पेयर टू आउटपुट टारगेटेड फॉर मॉनिटर्स, right? Okay, let's go to the second topics, handling file systems. What is it? This task involve the making of decisions regarding the storages of files, ठीक है? देखिए पहला जो हमारा था वो इनपुट, हाउ टू टेक इनपुट, हाउ टू डू आउटपुट, ये ऑपरेशंस परफॉर्म हो गया। उसके बाद जो सिक्वेंशियल वे में चलते हैं तो सेकंड टॉपिक इज क्या होता है? हैंडलिंग फाइल सिस्टम्स, कि कैसे हम अपने डेटा को या अपने हम फाइल को कैसे हैंडल करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है यहाँ देखिएगा, मेकिंग डिसीजंस, ठीक है? तो हम कह सकते हैं इट हैज़ द पावर ऑफ मेकिंग डिसीजन हाउ टू डू फाइल स्टोर, ठीक है? हम कैसे फाइल को स्टोर करते हैं, किस प्लेस पे स्टोर करते हैं, तो इसका जो हैंडलिंग डिसीजंस होता है वो किसके पास होता है? सेकंड स्टेप राइट नाउ, विच मीन्स हैंडलिंग फाइल सिस्टम्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट? Executions of program.
ओके मैंने इनपुट ले लिया, आउटपुट ले लिया, देन आफ्टर हमने उसको हैंडल भी कर लिया। देन थर्ड प्रोसेस इज़ व्हाट, हाउ टू डू एग्जीक्यूट, हम कैसे अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कराते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग वेरियस प्रोग्राम्स वेदर यूज़र प्रोग्राम्स और सिस्टम प्रोग्राम्स, राइट। तो यूज़र प्रोग्राम्स में जिसमें हम इन्वॉल्व हो जाते हैं और सिस्टम प्रोग्राम्स में हमारा कंप्यूटर इन्वॉल्व होता है। तो ये जो एग्जीक्यूशंस ऑफ प्रोग्राम्स फ्लो होता है वो किसके थ्रू होता है, या तो यूज़र प्रोग्राम्स के थ्रू होगा या फिर सिस्टम प्रोग्राम्स के थ्रू होगा। तो यहाँ पे बोला भी गया है कि सिस्टम प्रोग्राम दैट इज स्पेशल प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड फॉर द मशीन्स फंक्शंस, ठीक है। जो हमारे सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं जो मशीन्स के द्वारा ही फंक्शंस होते हैं। ओके गुड। देन गो टू द फोर्थ स्टेप्स, एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। कैसे हम अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, मीन्स यूज़ में लाते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं, देखते हैं। तो दिस टास्क एम्स टू प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल, ठीक है। जो भी हमारे पास रिसोर्स है अवेलेबल, हम उसको कैसे प्रॉपरली यूज़ में लाते हैं। द मेन टारगेट इज़ वॉट, हाउ टू डू यूज़ आवर रिसोर्सेज। For example, if multiple files are to be printed, then who and in which order this task will take place, ठीक है। जैसे बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपके पास बहुत सारे फाइल्स हैं जो कि प्रिंटेड होने के लिए तैयार हैं, तो कौन उसका ऑर्डर देगा और वो कब तक वो प्रोसेस में आएगा, तो विल बी डिसाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। तो यह किसके द्वारा डिसाइडेड होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के थ्रू। सपोज दैट आपके पास जो है मतलब एक साथ कई प्रिंटिंग कमांड आप दे रहे हो ना, तो प्रिंटिंग कमांड देते समय अब ये डिसीजन ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है कि किस प्रिंटिंग को फर्स्ट ऑफ ऑल वो टारगेट पे लेगा और उसको आउटपुट देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिफ्थ टॉपिक पे, डिटेक्शंस ऑफ एरर्स। डिटेक्शंस ऑफ एरर मीन्स कि हाउ टू डिटेक्ट द एरर, हम कैसे एरर को फाइंड आउट करते हैं। इन दैट प्रोसेस द ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग एनी टाइप ऑफ एरर्स दैट ऑकर्स एंड देन प्रॉपरली हैंडलिंग इट, ठीक है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी प्रकार के एरर को डिटेक्ट करने के लिए। मीन्स जब ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाए जाते हैं, उनकी कोडिंग की जाती है, तो ये इस पे ज़रूर ध्यान देना होता है कि अगर कोई हमारा सॉफ्टवेयर आउटडेटेड हो गया है तो कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम उस एरर को डिटेक्ट करेगा। कोई सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, लाइक वायरस इशू है या फिर कोई प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो ये जो डिटेक्शंस का काम होता है वो कौन करेगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम्स करेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इंफॉर्मेशंस एंड रिसोर्सेज प्रोटेक्शंस। तो इसमें आप क्या देखोगे, इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज प्रोटेक्शंस में कि जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो हमारे इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन मशीन्स आर यूज्ड इन अ करेक्ट वे, ठीक है। जो भी हमारे सिस्टम के पास इंफॉर्मेशन है या फिर रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली अवेलेबल हैं या नहीं हैं, करेक्ट फॉर्म में वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉल्स द अटेम्प्ट टू यूज़ दैम इनकरेक्टली, ठीक है, ताकि वो क्या हो सके, प्रॉपरली वर्क कर सकें। तो इस तरह से ये टोटल 6 पार्ट्स हैं हमारे जो इसके फंक्शंस में आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे पूछा जाएगा व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप डिफाइन कर दोगे लास्ट वीडियो सेशंस को देखकर, वहाँ से आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स का एक प्रॉपर डेफिनेशंस बना लोगे। जब यहाँ पूछा जाएगा एंड राइट देयर डेफिनेशन फंक्शंस, राइट देयर फंक्शंस, ठीक है, तो आप यहाँ पे 6 टर्म्स दिए हुए हैं। अगर लॉन्ग आंसर्स में आते हैं तो आपको 6 टर्म्स को एक्सप्लेन करने होंगे, शॉर्ट्स में आते हैं तो आप इसके नेम देकर भी क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स, आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स का रोल हमारे कंप्यूटर्स में क्या है। तो यहाँ देखेंगे आप क्या कि पहला जो टॉपिक है इसमें रिसोर्स मैनेजर है, फिर प्रोसेस मैनेजर है, फिर इंफॉर्मेशन मैनेजर है, ठीक है, उसके बाद भी है। तो सबसे पहले हम आते हैं, तो यहाँ बोला है देखिए, लेट्स डिस्कस दिस इन डिटेल। तो फर्स्ट क्या था वहाँ पे, रिसोर्स मैनेजर। तो यहाँ देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ रिसोर्स मैनेजर, जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ रिसोर्स मैनेजर होगा, रिसोर्स लाइक कैसे हम रिसोर्स मीन्स पहुँच, हमारे उसके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शंस विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस, ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस प्रोग्राम्स, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस,
इंटरप्रेट्स कमांड्स। देखिए जब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ना, तो आप उसमें एक छोटा सा डेफिनेशन यहाँ से भी एक लाइन में दे सकते, मतलब और देने के साथ साथ ये भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस प्रोग्राम मेमोरी इनपुट्स एंड आउटपुट डिवाइसेस इंटरप्रेट्स कमांड्स। ठीक है, द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ रिसोर्स मैनेजर एंड परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। तो आप कम से कम ये चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट्स आप जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, किस चीज़ में, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही डिफ़ाइन करना है, ना कि केवल ये। राइट, ओके। फंक्शंस के कुछ प्रोसेस दिए हुए हैं कि कितने फंक्शंस के क्या होते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट में। तो पहला जो दिया है देखिए, द सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर एबल टू रन ओनली वन एप्लीकेशंस प्रोग्राम एट अ टाइम। जो हमारा सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अपने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था तो वहाँ पे पहला ही था हमारा सिंगल टास्किंग। तो जो सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आर एबल टू रन ओनली वन एप्लीकेशंस एट अ टाइम राइट नाउ। ओके, तो any user who is required to work with many application at a one time faces a great difficulties, thus in order to switch programs in a single tasking operating system। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर मैं सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करूँगा तो एट अ टाइम वो वन ही लोग को सर्विस देगा ना। बट अगर कोई पर्सन जो है मल्टीटास्किंग पे वर्क करना चाहता है, मल्टी फंक्शनलिटी यूज़ करना चाहता है, तो जाहिर सी बात है वो उस प्रोग्राम को स्विच कर देगा, किसको, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स को। ठीक है, तो स्विच कर देगा तो जाहिर सी बात है उसके अपग्रेडेड वर्जन में जाएगा। तो द यूज़र हैज़ टू क्विट वन प्रोग्राम एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन द सेकंड प्रोग्राम्स, क्योंकि उसके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, वो एट टाइम वन ही प्रोग्राम पे वर्क कर सकता है। अगर उसको सेकंड पे करना है तो क्या करेगा, फर्स्ट को क्विट करेगा और सेकंड पर जाएगा। क्विट करेगा, याद रखिएगा, मिनिमाइज नहीं करेगा, क्विट करेगा मीन्स उस वर्क को क्लोज करेगा। The multitasking operating system offers a major advantage over the single tasking operating systems. With is the help of multitasking operating system, a user has options of working with two or more programs at a time। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारा सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं और उसके अपग्रेडेड वर्जन अगर मल्टीटास्किंग आता है तो वह उसके ड्रॉबैक को फुलफ़िल करेगा। तो उसका ड्रॉबैक यही था कि एट अ टाइम वो वन टास्क पे ही परफॉर्म करता था, लेकिन जब इसका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो एट अ टाइम मोर देन टू टास्क भी वो परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो इन सच केसेस द CPU स्विचेस बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशंस प्रोग्राम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, जो हमारे CPUs होते हैं वो क्या करते हैं, स्विच कर जाता है। वो एक्टिव वर्क, एक्टिव टास्क पे ही हमारा CPU फोकस करता है। बाकी जो हमारा, जैसे मैं एक टास्क पे म्यूज़िक सुन रहा हूँ, दूसरे टास्क पे मैं जाकर एक्सेल में कुछ शीट बना रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा CPU उसी पे वर्क करेगा जो एक्टिव होगा, जो मिनिमाइज़ हो चुका रहेगा, क्योंकि एक्टिव वर्क वही होता है जिस पे हम वर्क करते हैं करंटली, जिस पे मेरा कर्सर्स ब्लिंक होता है और जिस पे मेरा कुछ वर्क होता है, लाइक कीबोर्ड्स, माने इनपुट हम दिए जा रहे हैं, उसे हम कहेंगे एक्टिव वर्क। जो बैकग्राउंड में हमने मिनिमाइज़ किया है वो क्या है, एक्टिव नहीं है, वो डीएक्टिव है। मीन्स जब मैं उस पर कर्स अगेन हाईलाइटर से मैं उस पर क्लिक करूँगा तब वो एक्टिव वर्क होगा। तो इसीलिए CPU किस पे वर्क करेगा, केवल एक्टिव वर्क पे। नेक्स्ट आता है हमारा, एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द कंप्यूटर्स मेमोरी, इट एलोकेट्स, इसको क्लियर कर दूं पहले, हाँ अब देखिएगा, हाँ, एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द कंप्यूटर्स मेमोरी। ठीक है, अभी आपने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम का जो टास्क होता है यहाँ पे कि वह क्या करता है, मेमोरीज़ को भी, स्टोरेज को भी, ये सारी चीज़ को वो प्रोसेस में रखता है, मीन्स उस पर कंट्रोल होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द कंप्यूटर्स मेमोरी, इट एलोकेट्स द मेन मेमोरी एंड अदर स्टोरेज एरियाज to the system and users program. The operating system memory manages provides sufficient memory space so that several processes can be executed at the same time. It provides a satisfactory level of performances। ठीक है, तो आप सिंपल सा अपने मोबाइल्स को भी लेके आप समझ सकते हो, मोबाइल्स में भी हमारा एंड्रॉयड क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जब आप कोई गेम्स खेलते हो या किसी तरह का एडिशनल टास्क करते हो तो आप देखते हो कि हमारा जो रैम होता है वो क्या करता है, अनवांटेड स्पेस ले लेता है। ठीक है, जिनका 8 GB का होगा तो वो ऑटोमेटिक कुछ ऐसे, मतलब 250 या 500 MB पर डे वो क्या करते हैं, अनवांटेड स्पेस ले लेते हैं। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या करता है, उसको बूस्टअप करता है, क्लियर है
क्लीन करता है, ठीक है। तो आप देखते होगे उसमें कुछ ऐप्स होते हैं जो उस चीज़ को क्या करता है, क्लीन कर देता है, गार्बेज को डिलीट कर देता है। तो सेम एज इट इज़ कंप्यूटर में भी होता है कि हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो परफॉर्मेंस उनका अच्छा हो, इस वजह से वो क्या करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे सी वाले में। इसको मैं थोड़ा अब ले लूँ। हाँ, अब देखिए, द ऑपरेटिंग सिस्टम मेक्स श्योर दैट ईच प्रोसेस रनिंग इन अ सिस्टम डज नॉट इंटरफेस विद द कोड और डेटा ऑफ एनी अदर प्रोसेस आइदर एक्सीडेंटली और डेलिबरेटली, ठीक है। बोल रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल्स होता है किस चीज़ के लिए, कि कोई भी इंटरफेस कोड, ठीक है, मीन्स कोई भी कोड या डेटा किसी भी तरह का एक्सीडेंटली या फिर मतलब किसी भी तरह से हमारे लिए वो क्या हो, किसी मतलब कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना करे, ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो टेक केयर ऑफ डेटा सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना होगा कि डेटा सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मैं नोट पैड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब नोट पैड मैं यूज़ कर रहा हूँ तो नोट पैड का ही केवल फिगर दिखे मुझे, ठीक है। इसके अलावा इसकी कोडिंग ना दिखे कि नोट पैड की कोडिंग कैसे हुई है, नोट पैड को हम कैसे बनाए हैं, ठीक है। तो ये कौन रिलायबल करता है इसके लिए, कौन उसके इंटरफेस को हाइड करता है, तो जस्ट ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम। वो केवल कौन हाइड करता है उसको, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारा, एन ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ द एबिलिटी टू इंटरप्रेट कमांड्स एंड द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एबिलिटी होता है कि वह किसी भी कमांड्स को इंटरप्रेट कर सके या फिर इंस्ट्रक्शंस को दे सके, ठीक है। मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के थ्रू ही, मैंने पहले भी बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ मेन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर्स, ठीक है। जब भी कोई यूज़र कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देता है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्ट लाइक अ कमांडर, ठीक है। वो कमांड्स करता है, उस कमांड्स को लेता है और उसके बाद उस प्रॉपर प्लेस पे उस कमांड को पहुंचाता है। नेक्स्ट आता है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम मेक्स द मैन मशीन्स इंटरेक्शंस ईजियर एंड मोर एफिशिएंट, ठीक है। ये भी वही चीज़ बोला कि यह क्या करता है, मैन मशीन इंटरेक्शंस को और ईजियर बनाता है और इफेक्टिव बनाता है। क्यों, क्योंकि यह बीच का मीडिएटर है। किसके बीच के मीडिएटर है, यूज़र एंड मशीन्स लाइक कंप्यूटर। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, whenever an error is encountered whenever an error is encountered by the computers, an error message is flashed on the screen by the operating systems, ठीक है। जब भी हमारे कंप्यूटर में किसी भी तरह का एरर अगर अराइज होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग इट। ऑपरेटिंग सिस्टम उसे क्या करता है, डिस्प्ले करता है, कहाँ पे, हमारे स्क्रीन पे, मॉनिटर्स के थ्रू हम उसको विजिबल कर सकते हैं और उस एरर को हम देख कर डायग्नोस करेंगे एंड देन आफ्टर उसको इरेज करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट, इट हैज़ द एबिलिटी टू मैनेज एंड मैनिपुलेट फाइल्स प्रेजेंट ऑन वेरियस स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। इसके पास एबिलिटीज़ होता है कि किसी भी वो फाइल्स को मैनेज कर सके या फिर मैनिपुलेट लाइक अपडेट कर सके, क्रिएट कर सके, चेंज कर सके, कुछ भी किया जा सकता है उस स्टोरेज डिवाइसेस से। इट कैन ट्रांसफ़र दीज फाइल्स फ्रॉम वन स्टोरेज डिवाइसेस टू अनदर्स। तो मैंने पहले ही बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के पास पूरी कमांड्स होती है, तो वह फाइल को डिलीट कर सकता है, एडिट कर सकता है, अपडेट कर सकता है या फिर ट्रांसफ़र भी कर सकता है। नेक्स्ट इज़ व्हाट, द टेक्स्ट एडिटर्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ अस टू मॉडिफाई फाइल्स ईजिली, ठीक है। तो सिंपल सा वही चीज़ है कि हमारे वो टेक्स्ट एडिटर्स या जो भी फाइल्स होगा, टेक्स्ट एडिटर लाइक वर्ड पैड में होगा, नोट पैड में होगा, ठीक है। तो उनको वो ईजिली क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ प्रोसेसर मैनेजर। तो हमारा ये जो था वो क्या था, रिसोर्स मैनेजर, ठीक है। रिसोर्स मैनेजर मतलब इसके पास जो रिसोर्सेज थे वो कैसे उसका यूज़ किया, तो रिसोर्सेज इसके पास क्या थे कि कैसे, हाउ टू डू अपडेट, मैनिपुलेट, डिलीट, एडिट, ठीक है, इंटरप्रेट, और उसके बाद सिक्योरिटी को कैसे मैनेज कर रहा है, ये सारे हमारे रिसोर्सेज में आ गए। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ प्रोसेस मैनेजर। चलिए अब इसको हम कवर करते हैं। द प्रोसेस मैनेजर मीन्स
कैसे वो प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। प्रोसेसिंग इज आल्सो अ important parts for the operating system. तो process management components of operating system organize the executions of our jobs on CPU, ठीक है। जो हमारा जॉब होता है, जो हम टास्क करते हैं, वो एग्जीक्यूट करेगा, तो एग्जीक्यूट करेगा तो CPU से कैसे हैंडल करेगा। तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस अ यूज़र जॉब एट द फॉलोइंग 3 लेवल्स, ठीक है। अब सीपीयू को अगर मुझे हैंडल कराना है तो उसका भी एक लेवल होगा, तो उसको 3 लेवल्स में 3 भागों में डिवाइड करके उसको वर्क को परफॉर्म किया जा रहा है। तो पहला है हमारा जॉब शेड्यूल। पहला क्या है हमारा, जॉब शेड्यूल। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जॉब शेड्यूल डिटरमाइंस द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ वेरियस जॉब्स, ठीक है। यह डिटरमाइन करता है कि जो टास्क मेरे पास आया उसको कितने टाइम में हमें पूरी तरह से क्लियर करना है। द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेज स्पेशल लैंग्वेज सच एज जॉब कंट्रोल लैंग्वेज, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम JCL भी कहते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम पर्पज़ से आपको ये शॉर्ट में दिया जा सकता है, फुल फॉर्म ऑफ JCL FCFS, ठीक है। तो आप यहाँ से याद रखिएगा कि जॉब कंट्रोल लैंग्वेज फॉर एग्जीक्यूशन दिस जॉब सिक्वेंसली वन आफ्टर वन अदर द टिपिकल शेड्यूल्स क्राइटेरिया आर, ठीक है। बोल रहा है कि जो आपका जॉब कंट्रोल ये हायर करता है तो इसके थ्रू वो कैसे क्राइटेरिया को फॉलो कराता है वो नीचे यहाँ पे डिफाइन है। तो देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट पॉइंट है जॉब शेड्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। जैसे आप किसी बैंक में जाते हो, वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी है, तो उसमें क्या रूल्स होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आप अगर पहले जाओगे तो नंबर में पहला मिलेगा, अगर आप दूसरे जाओगे तो दूसरा मिलेगा, ठीक है। तो उसको कहते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, आप जैसे आओगे वैसे लाइन में लगते जाओगे, ठीक है। तो उसी तरह हमारा जो CPU होता है उसके पास जो नंबर ऑफ़ टास्क होते हैं, जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा वो सबसे पहले वहाँ पर CPU के पास पहुँचेगा, जो सेकंड में आएगा सेकंड में, जो लास्ट में जाएगा वो लास्ट में। और आई थिंक यही फेयर भी है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं ना है कि अभी मैं गया यहाँ पे बैंक में और मैंने अपने चाचा का बैंक समझ लिया और क्या भैया कि जाते ही मैंने बोल रहा मैनेजर से कि भाई, या मैनेजर ने मुझे पहले सर्विस दे दिया तो पीछे के या आगे जितने भी लगे हैं सब चिल्लाकर मुझे वहाँ पे पकड़ के पीटना शुरू करने, भाई तू है कौन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा, फेयर हमेशा हमें अपने लाइफ में रहना होगा। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे इससे अच्छा फेयर है कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। चलिए उसके बाद अब देखते हैं सेकंड शेड्यूल इसका क्या है। तो सेकंड शेड्यूल में आप देखिएगा कि जॉब शेड्यूलिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट क्रिएशंस, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा कि हमारे जो जॉब है उनको शॉर्टेस्ट कर देगा, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, इसका मतलब कि जो सबसे छोटा जॉब वाला होगा उसको हम पहले देख लेंगे, फिर उससे बड़े वाले को देख लेंगे, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, सपोज दैट जैसे बैंक में इतने एम्प्लॉई आए, उनका कुछ फॉर्म फिलअप करना है, तो वो क्या करेंगे, सबसे छोटे वाले को या सबसे कम अमाउंट वाले चेक को पहले क्लियर करेंगे, फिर उससे बड़े वाले को क्लियर करेंगे, फिर सबसे बड़े वाले को करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है जॉब शेड्यूलिंग अकॉर्डिंग टू यूज़र स्पेसिफाइड प्रियोरिटी, ठीक है। देखिए थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है कि तीसरा तरह का जो जॉब होता है वो क्या यूज़र पे डिपेंड करता है कि उसकी क्या प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। तो सपोज़ दैट मैं लाइन में लगा हूँ उसी बैंक में, या फिर डॉक्टर के यहाँ मैं चला गया, और डॉक्टर के यहाँ जाने के बाद वहाँ पे लाइन तो लगी हुई है, तो लाइन लगे होने का मतलब तो ये नहीं है कि फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व हर जगह ही ऑप्शन है। मे भी हो सकता है कोई ऐसा सीरियस केस हो जहाँ पे डॉक्टर को पहले देखना पड़ेगा, तो उस समय क्या होता है, प्रायोरिटी बेस्ड टास्क परफॉर्म होता है। तो उसी तरह जब अब कंप्यूटर में प्रायोरिटी बेस्ड क्या होता है, तो आप देखे होगे जब आप कंप्यूटर यूज़ करते हो तो बीच में कभी भी कोई पॉपअप ऑन हो जाता है और उसमें एक मैसेज आ जाता है, ठीक है। या फिर एक एरर मैसेज बॉक्स आ जाएगा या कोई भी डिस्प्ले अचानक आ जाएगा हमारे सामने, तो उसको जब तक मैं वहाँ से हटाऊँगा नहीं यस या नो प्रोसेस में या फिर कैंसिल प्रोसेस में, तब तक हम दूसरे टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए वहाँ पे कहेंगे हम कि वो प्रायोरिटी बेस्ड है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग जॉब शेड्यूलिंग अकॉर्डिंग टू यूज़र स्पेसिफाइड डेडलाइन फॉर फिनिशिंग अ जॉब, ठीक है। तो लास्ट क्या है हमारा कि जो हमारा यूज़र होता है वो एक डेडलाइन दे दिया किसी टास्क के लिए, और तो उसे हमें क्या करना होगा, जैसे मैंने किसी को टाइम दे दिया कि आपको मैं 1 बजे तक सर्व कर लूँगा, सर्विस दे दूँगा। अब 1 बजे तक पता चला, अब मैं गया और लाइन लगी हुई है पूरी,
ठीक है। तो उसने अगर मुझे सेंटेंस दिया है कि मैं 1 बजे तक करूँगा, तो मैं 1 बजे अगर पहले जाता हूँ वहाँ पे और उसको दूंगा तो सबसे पहले वो मुझे ही सर्विस देगा। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, आप जब बाल कटवाने जाते हो ना दुकान पे तो बाल जब कटवाने जाते हो तो वहाँ क्या होता है, आप गए बार्बर के यहाँ, बोल दिए भैया कितने बजे आए, बोला 1 बजे, तो आपने पहले ही बात कर लिया कि भैया 1 बजे आऊँगा, तो ऑलरेडी लाइन लगी रहेगी, तो कहे ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपका 1 बजे तक कर दूँगा, आप आइए। ओके, मैं 1 बजे तक गया, लाइन 4 की लगी है चाहे 5 की लगी, मुझे क्या, मुझे तो कटवाने हैं बाल। तो वहाँ पे हम कहेंगे कि हमारा एक डेडलाइन मुझे मिल गया और उसके अकॉर्डिंग मैं गया वहाँ पे अपना सर्विस कर लिया। वो अपने कस्टमर को समझाएगा कि भाई वो तो कई बार आ चुके हैं, पहले से ही उनकी लाइन लगी हुई थी, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इसमें कुछ 2 पार्ट्स में इसको क्लासिफाइड किया गया। पहला नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग और प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। तो ये क्या है, इन दिस टाइप ऑफ शेड्यूलिंग अ शेड्यूल्ड जॉब ऑलवेज कंप्लीट्स बिफोर अनदर शेड्यूलिंग डिसीजन इज मेड। ठीक है, तो जो शेड्यूलिंग जॉब्स होता है वो पहले ले लिया जाता है दूसरे को आर्गूमेंट देने के। जैसे वही सिंपल सा, अगर मैंने आपको आर्गूमेंट दे दिया है कि मैं आपको पहले सर्विस दूंगा, देन उसके बाद 4 लोग और आ जाएं, तो आपके आने के बाद मैं आप ही को दूंगा। आप बीच में अगर चले भी जाते हो तो फिर आते हो, जब भी आओगे तो उसके बाद आपको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा। एंड प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, इन द टाइप ऑफ शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग डिसीजन इज मेड इवन वाइल द जॉब इज अंडर एग्जीक्यूशन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रोग्राम इनिशिएशंस। ठीक है, तो इसमें क्या देख रहे हो कि डिटरमाइंस द टाइम एंड मेथड टू इनिशिएट प्रोसेसिंग ऑफ नेक्स्ट जॉब स्टेप्स। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो प्रोग्राम्स है इसमें इनिशिएट हो रहा है कि हम नेक्स्ट जॉब स्टेप्स क्या लें। मीन्स इसमें हम पहले ही डिटरमाइन कर लेते हैं कि ये जॉब के बाद अगला जॉब हम क्या लें, अगला टास्क हम क्या परफॉर्म करें। थर्ड इज वॉट, प्रोसेस शेड्यूलिंग। इसमें क्या होता है, प्रोसेस शेड्यूलिंग इज ऑर्गेनाइज द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल प्रोसेसेस ऑफ ईच जॉब स्टेप्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, सारे जॉब्स को एक साथ लेकर हम क्या कर लें, प्रोसेस करें, एक साथ हम उसको एग्जीक्यूट करें। द टिपिकल प्रोसेस शेड्यूलिंग क्राइटेरिया आर, अब इसमें सभी जॉब को अगर मैं एक साथ ले लेता हूँ तो मेरी मेमोरी जो होती है वो 1 के पास, 2 के पास, मतलब सबके पास इंगेज हो जाएंगे, तो जो उनका परफॉर्मेंस होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत ही स्लो हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्या बोला है, इज सेलेक्टिंग द प्रोसेस टू बी शेड्यूलिंग नेक्स्ट एंड एलोकेटिंग द प्रोसेस टू द सेलेक्टेड प्रोसेस, डिलीटिंग एन एग्जिस्टिंग प्रोसेस एंड क्राइटेरिया अ न्यू वन, मॉनिटर द स्टेट ऑफ ईच प्रोसेस। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे प्रोसेस बता रहा है कि अब यहाँ पे मुझे हर एक प्रोसेस का मॉनिटर करना होगा, डिलोकेटिंग द प्रोसेसर फ्रॉम अ प्रोसेस। ठीक है, तो हो सकता है कि एक प्रोसेस जहाँ पे 10 लोग का काम हो रहा है तो उसमें से किसी एक प्लेस से क्या हो जाए, डीलोकेटिंग, हमारा जो सीपीयू है या फिर जो भी इंचार्ज है वहाँ से कुछ देर के लिए चला जाए तो भी प्रॉब्लम होगा। फिर सपोर्टिंग अ मेथड फॉर कम्युनिकेटिंग बिटवीन प्रोसेस। ठीक है, तो उस प्रोसेस के बीच में जो सपोर्टिंग मेथड्स होगा कम्युनिकेशंस का वो वर्क कराना होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए हमारा यहीं पे मैं क्लोज़ करता हूँ। अगला जो सेशंस बनाऊँगा मैं वो किस पे बनाऊँगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। या आई थिंक इसको भी मैं कवर कर देता हूँ इसी में, ताकि नेक्स्ट टॉपिक्स पे हमारा फ्रेश फ्रेश मुझे मिले। तो देख लीजिए यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ इंफॉर्मेशन मैनेजर। थर्ड ये है हमारा रिसोर्स मैनेजर था, उसके बाद ये थर्ड हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ इंफॉर्मेशन। तो रिसोर्स मैनेजर, प्रोसेस मैनेजर हमने पढ़ लिया, अब हमारा इंफॉर्मेशन मैनेजर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर्स दैट द एफिशिएंसी ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस बाय द इंफॉर्मेशंस मैनेजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे यह इंश्योर कर रहा है कि इनपुट आउटपुट जो ऑपरेशंस होगा वो किसके थ्रू होगा, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से थ्रू होगा। कैसे होगा, इट कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड प्रोसीजर्स फॉर स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशंस फ्रॉम एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, यह क्या प्रोसीजर्स देगा कि हमारा जो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस से हो उसमें से वो एक्सेसिंग करें। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट देखिएगा, फिजिकल इनपुट आउटपुट कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, इसको हम IOCS भी कहते हैं। तो ये क्या है, फिजिकल IOCS प्रोवाइड्स द फॉलोइंग फंक्शंस। पहला है कैपेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम्स टू परफॉर्म देयर ओन इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। वेरी गुड, बोल रहा है कि वह अपना इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करे, इस तरह की कैपेबिलिटी हो उनका। हैंडलिंग ऑफ डिवाइसेस एरर कंडीशंस,
डिवाइसेस के पास एरर कंडीशंस को हैंडल करने का कैपेबिलिटी हो। फिर इंश्योरिंग ऑफ इनपुट आउटपुट एफिशिएंसी, ठीक है, इनपुट आउटपुट एफिशिएंसी हो उनके पास कि वो इंश्योर कर सके कि इनपुट कैसे लेना है और आउटपुट कैसे देना है। फिर प्रोवाइडिंग बेसिक डिवाइसेस इंडिपेंडेंसीज, ठीक है, वो कैसे बेसिक डिवाइसेस को पूरी फ्रीडम दें वो। तो ये 4 प्रोसेस यहाँ पे फिजिकली हो गया इनका, ठीक है। फिर लॉजिकली में क्या जाते हैं ये कि लॉजिकल इनपुट आउटपुट कंट्रोल सिस्टम में क्या हो गया था। पहला है हमारा यहाँ पे एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड एक्सेस ऑफ डेटा ऑन स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है, इनके पास एक एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन हो जो क्या कर सके, एक्सेस कर सके डेटा और उसके स्टोरेज कैपेबिलिटी को। नेक्स्ट आता है बेसिक कैपेबिलिटीज़ फॉर फाइल डेफिनेशंस, ठीक है, इनकी अपनी एक बेसिक कैपेबिलिटीज़ हो जो भी फाइल्स होंगे। एंड द लास्ट वन इज वॉट सेलेक्शंस ऑफ डेटा ऑर्गेनाइजेशंस फॉर अ फाइल, ठीक है। तो याद रखिएगा ये इंफॉर्मेशंस मैनेजर की मैं बात कर रहा हूँ। तो इंफॉर्मेशन मैनेजर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या था, सेलेक्शंस ऑफ डेटा ऑर्गेनाइजेशंस फॉर अ फाइल, ठीक है। तो किस तरह मैं कोई फ़ाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कोई भी फ़ाइल हमारा डेटा से ही बनता है। तो हमारा जो डेटा का सिलेक्शंस होगा वो क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। तो सिलेक्शंस ऑफ डेटा ऑर्गेनाइजेशंस फॉर अ फाइल, किस तरह का डेटा ऑर्गेनाइज करना है फाइल के लिए वो उसका सिलेक्शंस इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आते हैं फाइल सिस्टम्स। तो फाइल सिस्टम प्रोवाइड द फॉलोइंग फंक्शंस, क्या है पहला, प्रोटेक्शंस ऑफ एग्जिस्टिंग फाइल्स, ठीक है, जो हमारे फाइल्स हमने बनाकर स्टोर किया है उसका प्रोटेक्शन, ठीक है, जिस भी प्लेस पे हम रखते हैं उसके पूरा सिक्योरिटी मिले कि किसी भी तरह का छेड़छाड़ किसी भी तरह का एरर डिटेक्शंस या फिर डिलीशन प्रोसेस ना हो उसके साथ, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज वॉज कंट्रोल शेयरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग फाइल्स, ठीक है, जब फाइल मैंने बना दिया तो उस फाइल को कोई शेयर ना कर सके, अदरवाइज पायरेसी ऑफ डेटा हो जाएगा हमारा, ठीक है, हमारे डेटा की चोरी हो जाएगी। चलिए अब इतने टॉपिक हमने ये आज कवर कर दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक्स में हम आप क्या क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हमारा GUI मोड होता है और डॉस मोड होता है, ठीक है। GUI को ही हम यहाँ पे देखिए विंडोज़ मोड कहते हैं। तो इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे।